Last heading. Sir, antibiotics we had studied. Now chemicals and enzymes were going on. We have gone through the notes. In that we have studied that how microorganisms or microbes are helpful for our day-to-day life activities. The same thing was going on. Sana? Yes, sir. In your background, lots of books are visible. ये जानबूझ के सबको दिखा रही हो क्या कि हम इतना पढ़ते हैं? नहीं सर, वो बुक नहीं है, वो ऐसे ही वॉलपेपर है। ओह, वॉलपेपर भी ऐसा लगा है कि मास्टर बेवकूफ बन जाए। अरे वो मेरे चाचू बहुत शौकीन है सर ये सब का, तो वही लगाते रहता है। चलो ठीक है, लगाते रहता है। गुड। ओह माय गॉड, सॉरी सर, भूल गए आप हैं। Okay, I have to tell you about some acids which we use in our day-to-day life and which are prepared by the help of microbes. I think it is very easy also, and everybody have. Shreya, what happened? Shreya Singh? Nothing, sir. No, any problem? Somebody is disturbing to you also. Srishti. Okay. Now come to one new thing, that is one more new term is there for you people, that is bioactive molecule. It is a completely new term. What is it? First see what we have written. It includes those compounds which are prepared by microbes and is used in pharmaceutical industry. Pharmaceutical industry means दवाई बनाने वाली कंपनीज। Industry which is based on preparation of different drugs or medicines, that is called as pharmaceutical industry. It includes, first is cyclosporine A. It is obtained from fungus and is used as immunosuppressive agent. Already we have studied the concept of immunosuppressive agent, ये हमने पढ़ लिया है। अभी एक फंगस का नाम यहाँ आया, ट्राइकोडर्मा, और ट्राइकोडर्मा से we are extracting cyclosporine A, and this cyclosporine A is used in different medicines which are used for suppressing immunity. Immunity क्यों suppress करना है? I think this we have studied and everybody is knowing it. Is it clear? In which case we require to suppress our immunity? कब immunity को suppress करना पड़ेगा? In case of organ transplant. Mostly in the case of organ transplantation. If the body rejects the graft. Not if the body rejects. If any organ transplantation is there, immunosuppressive agents are given as a precautionary measure. अगर organ transplantation का procedure है किसी के body में, तो उसको immunosuppressive agent हम दे देते हैं, ठीक है? Now come to one more bioactive molecule, that is statins. It is obtained from yeast and is used in controlling blood cholesterol level. ठीक है, blood cholesterol एक major problem है. बहुत सारी बार देखा होगा टीवी में आता है घी कम खाइए, डालडा कम खाइए, रिफाइंड के ऊपर लिखा रहता है कोलेस्ट्रॉल फ्री, ठीक है? तो व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल को लेके हम इतने चिंतित क्यों हैं? क्या करता है ये? Sir, it increases the density of blood, by which it may generally block our vessels, and it may lead to heart attack also. Cholesterol is responsible for heart attack. Okay, जितना ज्यादा हमारे फूड में कोलेस्ट्रॉल होगा, ब्लड की डेंसिटी यानी उसका जो गाढ़ापन है ये बढ़ेगा, और जब गाढ़ापन बढ़ेगा तो उसका फ्लो है वो थोड़ा धीरे हो जाएगा, और ये कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट भी होता जाता है। जब कहीं ये ब्लड वेसल में डिपॉजिट हो जाएगा तो ब्लड के फ्लो को ये ब्रेक करेगा। इज इट क्लियर? So these are the two bioactive molecules. One was statin and one was cyclosporine. ऐसे बहुत सारे molecules हैं, ये दो common molecules थे। Now we have to study a new thing, which is the most important part of this chapter. इस chapter का अंगद, तुम लोग क्यों नहीं घर में पढ़ने बैठते हो तो दरवाजा वगैरह बंद करके बैठते हो? रह कि किसी न किसी को कोई ना कोई डिस्टर्ब करता रहता है।
Sorry, sir. अब सना को कोई डिस्टर्ब कर रहा है, मैं यही देखता रहूं कि किसको किसको कौन कौन डिस्टर्ब कर रहा है। यही देखो, अभिषेक है, रश्मि है, ये सब आकृति है, बेचारी बाहर भी बैठती है तो कोई नहीं डिस्टर्ब करता है। सोनू हीरो, यूनिफॉर्म कहाँ है? सर सर भूल गए। भूल गए? सॉरी सर। चलो, what I was telling you that in this chapter the next heading which we are going to study, it is the, wait, Brijesh sir, come here. Students, I am giving the microphone to Brijesh sir for next 2 minutes. He is very much willing to know the feedback of YouTube. आप में से 2-3 लोग, those who were connected yesterday, जरा अपना फीडबैक बताइए YouTube का, और YouTube से हम कितना काम कर सकते हैं। आइए, ताकि ले जाएगी। Okay, now come to topic. What I was telling you that the most important part of this chapter is the next topic which we have to study. It is microbes. What is the next topic? Tell me. Microbes and sewage treatment. Sewage treatment plant. Microbes in sewage treatment. Anybody among you have seen sewage treatment plant? किसी ने देखा है क्या sewage treatment plant कैसा होता है? नहीं सर। कोई नहीं देखा है? बट जानते हैं सर। बिना देखे कैसे जान गए? सर पढ़े हैं उसके बारे में। पढ़े हैं। इसमें से बनारस गंगा घाट पे कितने लोग गए हैं? Just raise your hands only. गंगा घाट। वाराणसी गंगा घाट पे कितने गए हो? गंगा आरती वगैरह कभी देखा है? कोई नहीं गया है। अभी पूछ दो कि सलमान खान की पिक्चर देखने कितने गए हो, तो कोई ऐसा नहीं होगा जिसका हाथ नीचे रह जाएगा। सर लेके तो जाने वाले थे आप बनारसी गंगा घाट, कहाँ लेके गए? कहाँ सब हम ही कर रहे हैं, मम्मी पापा क्या करेंगे? सर मम्मी पापा घुमाते हैं ना, बनारस नहीं गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? ओके, कभी वाराणसी जाएंगे तो वाराणसी गंगा घाट पे जो वहाँ का मेन गंगा घाट है, हरिश्चंद्र घाट, वहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखना चाहिए, वंस वी शुड सी। वहाँ पर हम जाएंगे तो वी कैंट सी द प्रोसीजर कि हाउ दैट प्लांट वर्क्स, बट एटलीस्ट वी कैन ऑब्जर्व और वी कैन व्यू इट फ्रॉम द आउटसाइड दैट दिस इज द arrangement of sewage treatment plant. Why I am telling you again and again that this is the most important topic? क्योंकि अगर न्यूज में देखा होगा लास्ट 4-5 सालों में, तो many rupees has been wasted for the cleanliness of different rivers, especially गंगा। करोड़ों का प्रोजेक्ट है गंगा को साफ करना, उसमें कितना किसके जेब में जाता है ये ऑन एयर बोलना तो ठीक नहीं है, बट फिर भी everybody among you is knowing the fact। उसके पीछे बेसिक रीजन क्या है, हाउ वी डू द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग रिवर्स और हाउ वी कैन डू द प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। ओके, बिफोर दैट वी शुड नो द टर्म, मीनिंग ऑफ द टर्म सीवेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीवेज? एनीबडी कैन टेल मी सीवेज क्या है? फरहान, अभिषेक रंजन, who is अभिषेक रंजन? म्यूट योर माइक। अभिषेक, कौन है अभिषेक? ने है yes, Farhan, tell me what is the meaning of sewage? यस सर। Tell me. सर जितने वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिसको हम लोग वाटर में डंप करते हैं उसी को सीवेज सिर्फ सीवेज का मतलब। और कोई? अंजलि, अंजलि यादव, सीवेज बताओ। नहीं सर नालियों का पानी। नालियों का पानी, अच्छा। गार्बेज क्या है श्रेया? व्हाट इज गार्बेज? सर गार्बेज जो उसके अंदर गंदगी पाई जाती है, दैट इज गार्बेज। वो प्लास्टिक हो सकता है, दैट मे बी एनीथिंग।
Okay. Anybody else? Raise your hand. Yes, Angad. Yes, sir. Sewage Sir, the liquid waste that is disposed from our houses is generally considered as sewage, and garbage. and garbage, it may be solid also, means waste things which are solid. Okay. Sana. Sir, sewage are mainly the toxic materials or things which are dumped. Dumped. Yes, sir, which are dumped Okay. outside. It is very easy concept. Garbage means एक वर्ड में बोले तो कूड़ा. ये वर्ड छोड़ नहीं बोलूंगा. Garbage means simply कूड़ा. क्यों कूड़ा बोलने में इतनी हंसी आ रही है भाई? क्यों सर? कूड़ा कचड़ा बस. इतना हंसी क्यों करना है? कई बार बोलते हैं दिमाग में कूड़ा भर गया है क्या, वही दिमाग में आ रहा है. ठीक है. कूड़ा किसको बोलते हैं भाई? सिद्धि, झाड़ू वाड़ू लगाती हो घर पे? नो सर. नहीं, मत लगाना, बहुत बुरी बात है. मम्मी है ही. नहीं कोमल. सर, मेड है ना. हाँ, अपने मत कभी लगाना. कोमल, यस सर. कभी झाड़ू वाड़ू लगाती हो? सर डेली लगाते हैं झाड़ू पोछा. गुड, ये तो अच्छी बात है. ओके. जो चीज वहां हमें दिखाई दे रही है जब हम साफ कर रहे हैं घरों को या सब्जियों को छील रहे हैं, फ्रूट्स को पील ऑफ कर रहे हैं, वहां जो चीजें निकल रही हैं उसको हम गार्बेज बोलते हैं जनरली. ओके. यानी एक टर्म में बोलना हो तो द सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड एज गार्बेज, एंड इफ वी मिक्स वाटर इन द सॉलिड वेस्ट, दैट सेम गार्बेज इज नाउ कॉल्ड एज सीवेज. बात समझ में आ रही है? If we mix the same garbage, if we mix the water in that same garbage, now it will start to flow and now it will be called as sewage. समझ आया? सीवेज को जनरली हम जो नालियों में बह रहा है उसको हम सीवेज कह रहे हैं. तो सीवेज में दो मेन चीजें होती हैं. फर्स्ट, द मेजर कंपोनेंट इज वाटर और द रिमेनिंग कंपोनेंट इज सॉलिड वेस्ट. इज इट क्लियर डिफरेंस बिटवीन सीवेज एंड गार्बेज? जो जनरली बाहर हम घर से एक पॉलीथीन में बांध के फेंक देते हैं, जिसको एक पूरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो बाहर से आके कूड़े वगैरह इकट्ठा करता है, दैट इज गार्बेज. एंड द वेस्ट विच इज फ्लोइंग इन डिफरेंट ड्रेन्स, दैट इज कॉल्ड एज सीवेज. इज इट क्लियर? ओके. अब सीवेज को मैंने अभी तुम्हें बताया 1 सेकंड पहले कि सीवेज के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट इज वाटर एंड सेकेंड इज सॉलिड वेस्ट. ऐसा माना गया कि सीवेज में लगभग 90% पानी ही होता है. अगर हम इसको ऑब्जर्व करना चाहें तो हम नहा रहे हैं अगर, तो नहाने में अगर हमने 2 बाल्टी या 2-3 बकेट वाटर वेस्ट किया, वेस्ट ही कर रहे हैं, नहा तो रहे नहीं है, सफाई तो करते नहीं है, वी आर जनरल ओनली वेस्टिंग द वाटर. तो उस 2 बकेट वाटर में हमारे बॉडी से गंदगी कितने % निकली? हार्डली 1% और 2%. हाफ नहीं, 1% या 2%. 95% तो उसमें सिर्फ पानी ही है. थोड़ा बहुत हमने साबुन वाबुन मिक्स किया तो उसमें उस पानी में कुछ चीजें ऐड हो गई, लेकिन उनका परसेंटेज जो है दैट इज हार्डली अप टू 2%. 2% से ज्यादा घर का जो वेस्ट है इसमें गंदगी नहीं होती है पानी में. बट देन ऑल्सो दैट वाटर इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. Not only for human consumption, that water becomes unfit to be released in different water bodies also. हम उसको वाटर बॉडीज में, नदियों में, नालों में डायरेक्टली अगर रिलीज कर दें तो वहां पर जो एनिमल्स या प्लांट्स हैं उनके लिए वो नुकसान होता है. फरहान, शिल्पी, म्यूट योर माइक. ओके. तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि द सीवेज, अगर थोड़े से अवेयर हैं अपने नेचर के बारे में तो ये सबको पता है कि डे बाय डे वाटर की स्कैर्सिटी होती जा रही है. हो रही है, वाटर की स्कैर्सिटी होती जा रही है और हमारा जो वाटर का वेस्टेज है ये बढ़ता जा रहा है. और मैं अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि द वाटर विच वी आर रिलीजिंग फ्रॉम आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज, बाय आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज, दैट इज we can say that more than 90% it is pure.
but due to this 5 to 10% impurities, we are not able to use that water. So what scientists or what the government has planned to anyhow filter these impurities from water so that it can be fit for human consumption or it can be fit to be released in the water body. इस पे बहुत काम किया गया कि कैसे उस पानी को हम इतना तो साफ कर सकें कि हम या तो उसको वापस ह्यूमन को भेज दें. जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है बॉम्बे वगैरह में, वहां पर ये बिल्कुल कॉमन प्रैक्टिस है कि तुम्हारे घर का पानी बह के आ रहा है नाली में, उसको फिल्टर किया गया और फिर वही वाटर हम वापस से सप्लाई कर देते हैं हाउस होल्ड में. समझ में आ रहा है? मोस्ट ऑफ यू आर मस्ट बी नोइंग ऑल्सो, जैसे हम अपने यहाँ हमारी जो लोकेलिटी है इसमें हम जहाँ चाहते हैं वहाँ हैंडपंप लगा दिए या ट्यूबवेल लगा दिए, मोटर लगा दिए. सिटीज में इट इज कम्प्लीटली बैंड, हम बोरिंग करा ही नहीं सकते हैं. वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट सप्लाई फॉर वाटर फैसिलिटी. गवर्नमेंट ही पाइपलाइन से वाटर प्रोवाइड करती है, तो गवर्नमेंट को पानी कहाँ से मिल रहा है? वो हमारे ही घरों से जो पानी इकट्ठा हो रहा है, ये बहते हुए जा रहा है, इसको वो कलेक्ट कर रहे हैं और अब जो प्रोसेस हम पढ़ेंगे इस प्रोसेस से उसको फिल्टर कर रहे हैं, फिल्टर करके प्योर कर रहे हैं एंड आफ्टरवर्ड्स दे आर सेंडिंग इट अगेन टू डिफरेंट हाउसेस. समझ में आ रहा है सीवेज ट्रीटमेंट क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग Yes, टॉपिक sir. है. ओके, अब इसके बाद दो टर्म्स और जानने हैं जो जरूरी है. वन इज प्यूरिफिकेशन एंड अनदर इज फिल्ट्रेशन. प्यूरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन. दीक्षा राय, अनम्यूट योर माइक. और संजना, दोनों अपने माइक को अनम्यूट करो. दोनों टर्म्स को बताओ, व्हाट इज प्यूरिफिकेशन एंड व्हाट इज फिल्ट्रेशन. बोलो, दोनों में से कोई अपने माइक को अनम्यूट करके बोलो. नहीं, वेट अंगद, वेट. दोज हु आर नोइंग जस्ट रेज योर हैंड. Sir, please repeat your question. What is difference between purification and filtration? If somebody has login with an ID which is written as Singh, किसी ने एक ID से लॉगिन किया जिसपे सिर्फ सिंह लिख के आ रहा है, ये कौन है? Who is this? लो, it has gone. ये बढ़िया है. जिससे पूछ दो कि कौन है तो बढ़िया है कि जल्दी से लॉग आउट कर जाओ. वेट 1 सेकेंड. अच्छा चलो, लेट मी कंटिन्यू क्लास. ओके, टेल मी संजना एंड दीक्षा, प्यूरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन. हाउ मेनी ऑफ यू आर नोइंग? जस्ट रेज योर हैंड. यस सृष्टि, बताओ. सर, प्यूरिफिकेशन उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और फिल्ट्रेशन में हम लोग जैसे किसी चीज को उबाल के मतलब या फिर उसे फिल्टर करते हैं, उसमें के जर्म्स को निकालते हैं. ओके. और सर बस इतना ही पता है. ओके ओके. सना, सना, you are also not in uniform, I think so. Yes, sir. Actually, it is wet. So. Anyhow, you have got some matching clothes and trying to fool me. Yes, sir. Sir, purification is completely cleaning cleaning a water a liquid thing, but filtration is doing it for a short time. Doing it for a short time or in little amount it is done. सिद्धि बताओगी? Yes, sir. Tell me. The purification, so purification means removing all the impurities from the water. Or filtration means only at least for drinking. Okay. Cleaning the water only for drinking. Drinking. Okay. Angad? Yes, sir. Filtration is the process of removing solid particles by separating those solid particles and water. It doesn't confirms that the water which we are getting after filtration is completely harmless for us. But
in purification, several processes are done which ensures us that the output which we are getting, that is the water, is completely safe and unharmful for us. ओके कोमल, सिट प्रॉपरली। आगे पीछे कहाँ देख रही हो? दुनियादारी 10 मिनट बात करना, 5 Sorry, मिनट sir. की और क्लास बची है। ओके, कम टू टॉपिक। सिंपली अगर इसे हमें समझना हो, सपोज करो कि एक नाली में पानी बह रहा है गंदगी के साथ, अगर हमने उसमें जाली लगा दी पतली पतली, उस जाली को क्रॉस करके जो पानी आगे बढ़ेगा वो फिल्टर्ड वाटर होगा या प्योर वाटर होगा? Filtered, It sir. is filtered वो water. फिल्टर्ड वाटर Sir, होगा। Filtered. इट मीन्स व्हाट? फिल्ट्रेशन Filtered मीन्स water. सिंपली रिमूविंग द सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर। सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं हम, दैट इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन। और उस सॉलिड पार्टिकल को रिमूव करने के बाद व्हेन वी आर making that water fit for human consumption, now that water will be called as, or that process will be called as purification. Is it clear? कि पहले हम उसमें की गंदगी छाट रहे हैं, afterwards we are trying to remove the dissolved impurities। उस पानी के अंदर जब हमने साबुन लगा लिया अपने बॉडी में, ये साबुन पानी में मिक्स हो गया, जब ये नाली में बहेगा और हमने अगर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से इसको गुजारा तो क्या साबुन निकल जाएगा बाहर? साबुन में तो जो केमिकल्स हैं, दिस केमिकल्स हैव गॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर। इन केमिकल्स को बाहर करने के लिए द प्रोसेस विच वी विल यूज विल बी कॉल्ड एज प्यूरिफिकेशन। समझ में आया? जैसे हम अपने घर में अगर आरओ यूज कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है? वाटर को फिल्टर कर रहा है या प्योर कर रहा है? प्योर कर रहा है। वो प्योर कर रहा है। फिल्टर भी करता है, क्योंकि फिल्टर में आरओ में पहले एक फिल्टर लगा होता है जो आरओ के बाहर होता है, देखा होगा सबने, बहुत सारे आरओज हैं। आरओ का भी इसमें आएगा नाम, Candle. हाँ, जिसको कैंडल बोल रहे हैं, आरओ का भी नाम आएगा लास्ट में। ओके, तो आई थिंक यू पीपल हैव गॉट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन। दिमाग में एक कंसेप्ट आया होगा, ठीक है? तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस तो आसान है, क्यों? क्योंकि हम आसानी से कोई जाली वाली लगा देंगे तो वाटर में की सॉलिड इम्प्योरिटीज छोटी बड़ी, थोड़ी बड़ी जाली लगा देंगे, फिर थोड़ी छोटी लगा देंगे, फिर थोड़ी और छोटी लगा देंगे, तो जो सॉलिड इम्प्योरिटीज हैं ये निकल जाएंगी। लेकिन डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज को निकालना थोड़ा मुश्किल काम होगा, और उसे डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए हम इस पूरे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को पढ़ेंगे। ओके, तो आई थिंक ओनली 2 minutes टाइम इज रिमेनिंग। विद इन 2 minutes इट कांट बी फिनिश्ड। एक बार इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को खुद से पढ़ेंगे, मोस्ट ऑफ द थिंग यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। बीच में एक थोड़ा बायो का अप्रोच आएगा, मीन साइंटिफिक अप्रोच आएगा, दैट अप्रोच आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, एंड इन नेक्स्ट इवनिंग में लाइव क्लास if होगा I सर। will, I don't think today I will be free, so need not to wait for that. Okay, ओके today I am not going to stay in evening in school. Sir. It is not possible. Yes. सर व्हाट्सएप पे डाउट क्लियर नहीं